to an incident that had gone down in Rajasthan. Rajasthan's government has made it very clear no one is above the law. That's the message they're sending with bulldozer action in Chomu. Rajasthan's Deputy Chief Minister has now come out to say tamper with law and order and face the bulldozer action. That's what we are looking at. Tamper with law and order, face dozers. That is what's been said by the Rajasthan Deputy Chief Minister. Deputy Chief Minister Bairwa has come out to say crackdown on rioters and vandals. Good governance will not be compromised. This is what Deputy Chief Minister Bairwa has to say. In fact, to take you through that excerpt, a strong message to those who tamper with law and order. The bulldozer action taken by the Bhajanlal government in the state against the anti-social elements who created a disturbance and disrupted peace in Chamun makes it clear that no one is above the law. Peace, security and good governance will not be compromised in Rajasthan. The government is firmly committed to immediate and strict action against those who cause disturbance, violence and damage to public property. Pledge for good governance, attack crime, confidence for public. This is what's been said at this very given point of time. This is bulldozer action that we've in fact been reporting about since morning. That's taken place in Chomu, 40 kilometers away from Jaipur. And this is after what had happened on December 26th. If you remember, there was a stone pelting incident where there were certain antisocial elements who had come out to pelt stones at the police officer itself after there were certain stones that were kept outside the mosque that were removed. While it was informed that that would take place in terms of removing the stones from outside the mosque with prior notices having been given, and people had agreed to it as well. It was this group of antisocial elements who had come out to pelt stones at the police officers there while things were going about rather peacefully. So this is what's happening now. You can see people in fact even getting that very message while they are in those very houses, whose front porch is completely being bulldozed at this very given point. The steps and even some places we see the water lines disrupted. Sharath Kumar joining me on the broadcast with more details on this. Sharath, a very good morning to you. सबसे पहले आप हमें बताइए कि अभी ये जो बुलडोजर एक्शन लिया गया है, गवर्नमेंट का कहना है कि ये क्लियर मैसेज है कि लॉ एंड ऑर्डर के अबाव कोई नहीं है. आप हमें बताइए कि आपको और क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल चोमू से. देखिए श्रेया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो बुलडोजर एक्शन अभी हुआ है, अब यहाँ से सारे मलबे हटाए जा रहे हैं. ये पठानों की गली है, ये पठानों की गली है पूरी, और इसी गली में आपको याद होगा उस दिन पथराव हुआ था. ये पूरा मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम मोहल्ला है, जहाँ पर ये कालिंदी मस्जिद आगे है, इसके पीछे का इलाका दूसरी मस्जिद पर जाकर खत्म होता है. ये करीब 1 किलोमीटर का इलाका है जहां पर ये आज अतिक्रमण हटाए गए हैं. ये दीवार थी, इस दीवार को तोड़ा गया है, यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है इस घर की दीवार को. तो इस तरह जो जो अतिक्रमण में आए हैं कि 3 बिल्डिंग सील किए गए हैं और बाकी की दीवारें तोड़ी गई है. देखिए इसमें प्रशासन जो है बिल्कुल ही इस बात को छुपा नहीं रहा है कि जो पत्थरबाजी हुई थी उसकी वजह से इस तरह से कठोर सजा देने की कोशिश की जा रही है कि अगर भविष्य में कानून को अपने हाथ में लिया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी. उस दिन जो पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था उसमें 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद ये 3 दिन की नोटिस दिया गया था. 3 दिन के नोटिस में इन्हें अपने अतिक्रमण को हटाना था. ये अतिक्रमण को नहीं हटाए हैं, उसके बाद इस तरह से पूरे गली में ये कार्रवाई की गई है. और ये भजनलाल शर्मा का इंसाफ का एक तरीका है. हम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के समय इस तरह की स्थिति देखा करते थे. अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पर भजनलाल शर्मा का इंसाफ भी चल रहा है. दूसरी तरफ भी हम कहेंगे, कैमरामैन को दिखाएं किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर सड़कों पर हैं और पुलिस का बड़ा जमवाड़ा है जहां पर ये तोड़फोड़ हुई. हालांकि देखिए जिस तरह से रात से ही पूरा गश्त चल रहा है, उसके बाद कोई यहाँ पर विरोध करने के लिए आया नहीं. लेकिन हाँ, लोगों का ये जरूर कहना है कि ये चूंकि मुस्लिम इलाका है और इस वजह से जानबूझकर चोमू में चिन्हित करके इस तरह की कार्रवाई की जा रही है. और 3 बुलडोजर थे, तीनों बुलडोजर से इस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हुई है. कुछ लोगों ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के होने की वजह से ये टारगेट किया जा रहा है, मगर ये देखिए ये जो अतिक्रमण था, इस तरह के दीवारें अगर आप देखते चले आप श्रेया, तो इस तरह की दीवारें तोड़ी गई है. और ये बाहर आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में
लोग खड़े हैं। बाहर की तरफ भी, सड़क के उस तरफ भी अतिक्रमण हटाया गया है। तो जो आरोपी थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था पत्थरबाजी के आरोप में, उनके घरों को चिन्हित करके और फिर नोटिस दिया गया। करीब 24 के आसपास नोटिस बताया जा रहा है और चिन्हित करके उन्हें इस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया है। ये पूरा इलाका है, ये चोमू का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी खड़ी है, जो आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में देखने वाले लोग भी खड़े हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा था। मगर सबसे बड़ी बात है कि जो नगर निगम है, नगर निगम चोमू नगर प्रशासन ने यहाँ पर ये नोटिस दिए थे। इस नोटिस के बाद यहाँ पर कार्रवाई हुई है। इस तरह से सड़क की दूसरी तरफ भी अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर भी ये कार्रवाई हुई है और ये ट्रैक्टर के जरिए अब मलबे को यहाँ से हटाया जा रहा है। नगर निगम का कहना है कि इसके बाद जो है आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे, तो जो खर्च हुआ है उसके पैसे भी वसूले जाएंगे। नगर निगम के अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। एक मिनट। ये कितने अतिक्रमण चिन्हित किए थे आप लोगों ने, कितने हटाए हैं? ये सर हमने करीब 22 लोगों को नोटिस जारी किया था और उन लोगों में से कुछ ऐसे थे जिनका अस्थायी अतिक्रमण था, उन्होंने स्वयं के स्तर पे भी हटाया। बाकी के जो लोग सड़क सीमा में थे और पक्का निर्माण करके अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था, उन लोगों को हमने हटा दिया। प्रशासन ने एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है पत्थरबाजों के। प्रशासन का संदेश ये है कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से अतिक्रमण नहीं करे। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी इलाके में अवैध अतिक्रमण करता है या सड़क सीमा को बाधित करता है तो नगर परिषद द्वारा उस पर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों का कहना है कि चूंकि ये पठानों की गली है, पूरा मुस्लिम इलाका है, इसलिए उसने पुलिस फोर्स के साथ इस तरह से किया गया। पुलिस फोर्स का रहना इस प्रकार से सर, कुछ समय पहले यहाँ पे कोई पत्थरबाजी की घटना हो गई थी और हमारे द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है और ये किसी भी इलाके में अगर अतिक्रमण किया जाता है तो नगर परिषद तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बहुत सारी बिल्डिंग सीज भी हुए हैं। हाँ जी, 3 बिल्डिंग्स थी जो बिना लैंड यूज कराए और बिना बिल्डिंग परमिशन के बना ली गई थी, उनको सीज कर दिया गया है। तो सुना आपने, नगर प्रशासन का ये कहना है यहाँ पर श्रेया की जो अतिक्रमण था उसे हटाने की हमने कार्रवाई की है। मगर देखिए इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर सुबह 8 बजे शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है। अब जो चल रही है कार्रवाई वो यहाँ पर मलबे हटाने की कार्रवाई हो रही है और जो अतिक्रमण हटाए गए हैं। अब देखिए ये जो जीप है, ये जीप की जो कांच टूटा हुआ है श्रेया, उस दिन ये पत्थरबाजी हुई थी तो उसमें ये पुलिस की जीप के कांच टूटा हुआ था। ये जीप उसी जगह खड़ी है आज भी जिस जगह ये कांच टूटा था ये पुलिस की। और ये सामने वाले होटल आप देख रहे हैं, यहीं से पत्थरबाजी हुई थी। अब इन सारी चीजों को चिन्हित करके यहाँ पर जो पुलिस है, प्रशासन है, नगर प्रशासन है, वो सारे लोग चिन्हित करके यहाँ से अतिक्रमण को हटा रहे हैं। और ये पूरा नजारा आपको इस तरह से दिखाई देगा कि किस तरह से यहाँ पर इस सड़क को पूरी तरह से खाली किया गया है। और ये बाजार है, देखिए ये घर नहीं है, ये बाजार है, ये होटल है और इस तरह से ये दुकानें हैं। अब जैसे देख लीजिए ये कम्प्लेक्स है, इस कम्प्लेक्स को आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे सीज किया गया है और ये सीज करने की कार्रवाई की गई है नगर परिषद चोमू के द्वारा। तो ये जो नई बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनी हैं इस गली में, उन्हें सीज भी किया गया है। इन सारी बिल्डिंगों को, इस तरह से कई बिल्डिंगों को सीज किया गया। आगे हम आपको दिखाते जाते हैं, देखते चलिए किस तरह से यहाँ पर और पूरी गली में ये कार्रवाई की गई है। ये दुकानें हैं सारी, इन दुकानों के आगे जो रैंप थे, ये सीढ़ियां थी घर में जाने के लिए, वो हटाए गए हैं। और इस तरह से जो पानी की पाइपलाइन थी वो भी सारी टूटी है। इन लोगों का कहना है कि पानी का पाइपलाइन भी हमारा टूटा है। कई सारे लोग आपको यहाँ पर संभालते हुए मिल जाएंगे अपने घर के आगे पत्थर को बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका घर है? बिल्कुल सर, मेरा घर है। प्रशासन ने आप लोगों को नोटिस दिया? बिल्कुल दिया था सर। तो हटाया नहीं अतिक्रमण? नहीं सर, ये जो अतिक्रमण नहीं है, सीढ़ियों का कोई अतिक्रमण तो होता नहीं है। देखो सर, ये दुकान है, ये इतनी ऊपर दुकान है, तो अगर कोई कस्टमर आएगा तो जाएगा कैसे इस दुकान के अंदर? उसमें कहने का आप अंदर सीढ़ी बनाइए। कैसे बनाए सर, दुकान इतनी सी है, अगर अंदर सीढ़ी बना देंगे तो जाएगा कैसे फिर? आपका व्यवसाय प्रभावित होगा। बिल्कुल होगा सर। तो ये पत्थरबाजी की भी सजा है कहा जा रहा है। हो सकता है सर, अगर ये प्रशासन चाहे तो कुछ भी कर सकता है। देखो सर, प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है। लोगों ने पत्थरबाजी की थी, जो लोग जिन्होंने की थी आप उन पे कार्रवाई कीजिए ना, उनको पकड़िए, उनको अरेस्ट कीजिए सर। अगर आप चाहते हो, प्रशासन अगर ये चीज चाहती है कि हाँ ये लोग गलत है तो उनको पकड़िए, अरेस्ट कीजिए, उनको सजा दीजिए। लेकिन जो बेकसूर है उनको क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो सर? अगर हमारा गुनाह ये है कि अगर वहां से पत्थरबाजी हो रही है, अगर हमारा घर यहाँ पर है तो
हम भी गुनाहगार हो गए, हमारा घर यहाँ पर है तो ये तो आपका बिजनेस प्रभावित होगा। बिल्कुल सर। तो ये दुकान है इनका, ये कह रहे हैं किस तरह से दुकानें जो है हमारी वो प्रभावित होगी। और इस तरह की सारी दुकानें देखिए श्रेया, ये पठानों की गली में इस तरह की दुकानें बनी हुई है और ये दुकानें हैं, ज़्यादा चिकन मटन की भी हैं और बहुत सारे चूड़ी वगैरह की दुकानें भी हैं, पारचून की दुकानें भी हैं। तो इन दुकानों के अंदर के सामने के रैंप तोड़े गए हैं, घरों के आगे के रैंप तोड़े गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको पूरा मलबा दिखाई देगा। मैं पूरा इलाका आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। ये पठानों की गली है जहाँ पर इस पूरे अतिक्रमण को यहाँ से हटाया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये घर के आगे की रैंप है। अब इस घर में ये इतनी ऊंचाई पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, वो टूट गई हैं, जहाँ पर आने जाने में लोगों को परेशानी होगी। ये पानी की पाइपलाइन भी टूट गई हैं, तो लोग परेशान भी होंगे। और ये इनके दुकान का ये रैंप है जो टूटा है। आप स्थानीय हैं यहाँ, लोग हैं जो यहाँ पे सड़क से पत्थर को भी लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग? आपको इतना नॉलेज नहीं है, कहाँ से लेके जाएंगे यार आप भी ऐसी बात नहीं पूछ रहे हैं। कहाँ लेके यहाँ रख रहे हैं? तो ये आप लोगों के घर के आगे जो रैंप टूटा है उसमें अतिक्रमण कर रखे थे आप लोग? सर एक चीज बताइए, अतिक्रमण क्या होता है? मुझे बताइए अतिक्रमण क्या होता है? कि हमने रास्ते में दीवार कर रखी थी या कुछ और कर रखा? हमारे घर के सीढ़ियाँ जाने के लिए सीढ़ियाँ बना रखी थी हमने, और हम इसका नोटिस का जवाब भी दिला के आए थे। हमें 2 दिन का 4 दिन का टाइम देना चाहिए। आप आपकी सर से हटा लो। एक माइनॉरिटी रूट टारगेट कर दिया उन्होंने। तो इसके पहले अशोका प्लाजा कितना अतिक्रमण हो रहा है अशोका प्लाजा के आसपास में? देखिए पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर जा रही है, हम चलते हैं साथ में श्रेया, क्योंकि पुलिस यहाँ पर दौड़ती हुई जा रही है। तो ये पूरा इलाका जो है वो जी शरद, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Well viewers, Sharad Kumar is currently there in that very locality from where stone pelting had taken place. Now the authorities also have said that these are illegal encroachments which they had served notice, the residents were served notice, or people who had their shops were served notice already, and now after they didn't move out, this is the action they are taking. So it's a big message of governance that's coming in from the Rajasthan government at this given point of time. Now we have some more breaking news coming in. We'll quickly take a look at what we're learning.